Assalamu alaikum. Hello, my dear students. I hope you must be doing well. It's me, Mubashir Ahmed, and I'm going to start the new unit by the name of Archaeological Treasures of Pakistan. If you remember, in the previous session that we had the opportunity to sit through, we had covered almost half of the unit. So today, I'm going to continue from the last point that we discussed in the previous class. And if you remember, we were discussing something about the archaeological sites of Pakistan, the remains of Pakistan, and how archaeology in Pakistan contributes to the different sites that have been identified with regard to the primitive civilizations. So if you look at the whiteboard, I've already written the name of the unit, Archaeological Treasures of Pakistan by Henry Feldman. अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस क्लास में इस मुद्दे पर बातचीत की थी कि हमारे यहाँ काफ़ी रिच सिविलाइजेशंस रही हैं और उसका अंदाज़ा हमें कहाँ से लगता है whenever we visit these different sites like Harappa, Mohenjo-daro, all these different civilizations, Indus Valley civilizations actually indicate that there were some very mighty and rich civilization that inhabited these areas. So, what are we going to do? We are going to continue our discussion with the same concept and logic till the end today. So, I would request you all to kindly open your books on page number 233. Let me repeat. Open your books on page number 233. So, let's start. One of the most important aspects of the Mohenjo-daro discovery is its confirmation of the existence of an established civilization in the Indus Valley region before the arrival of Aryan invaders, and also the fact that more than one ethnic type was then present. It means when you look at the Mohenjo-daro, the area where Mohenjo-daro used to live, over there it indicates that the civilization that used to occupy that area was Indus Valley, and the civilization was Indus Valley civilization. This is the name given to it. So Indus civilization was inhabiting that particular area, and more than one ethnic stock would occupy that area. इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, एथनिसिटी कहते हैं कौम को, वहाँ पर मोहनजोदड़ो का जो कल्चर है वो किसी एक एथनिक स्टॉक का नहीं था, बल्कि वहाँ पर मुख्तलिफ एथनिक स्टॉक्स आबाद थी. तो ये जो इलाका है मोहनजोदड़ो का, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कहते हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टॉक आबाद थी बिफोर द अराइवल ऑफ आर्यन इन्वेडर्स. आर्यन एक जंगजू कौम थी, उनके आने से पहले ये कौमें, ये एथनिसिटीज यहाँ पर आबाद थी. ये जो हम कहते हैं ना एथनिक स्टॉक, ethnicities कहते हैं different castes, people coming from different castes, मतलब Pashtuns, Punjabis, Sindhis, Balochis. Then there are subcastes within these castes. So there used to live multiple castes in the area of Mohenjo-daro. After that, the measurement of the skulls shows 4 distinct ethnic categories, of which one belongs to the Mediterranean classification. इसका मतलब ये है कि जब आप मेजर करते हो उनके स्कल्स को, स्कल्स कहते हैं खोपड़ी, इनको जब आप मेजर्स करते हो ना इनके ढांचों को, तो वहां से आपको अंदाजा होता है कि इनमें से जो एक ट्राइब है, स्कल शोज 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज. 4 डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? 4 डिस्टिंक्ट. Distinct means separate, different. Varied मतलब 4 मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस, 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज, 4 मुख्तलिफ कौमें, मेजर कौमें आबाद थीं.
जिनमें से एक टू द मेडिटेरेनियन क्लासिफिकेशन, मेडिटेरेनियन एक ब्रॉडर टर्म है, इस मेडिटेरेनियन क्लासिफिकेशन से एक का ताल्लुक था, तो उनमें से 4 मुख्तलिफ कौमें और एक का ताल्लुक मेडिटेरेनियन क्लासिफिकेशन से था. Now, the Alpine and Mongolian types have been identified, and also the Proto-Australoid group, typically of the Aboriginal of South and Central India. अच्छा, कितनी कास्ट थी? एक थी अल्पाइन, दूसरी थी मंगोलियन. Now, अगर आप देखें अल्पाइन एंड मंगोलियन, ये जो मंगोलियन है, दिस इज समथिंग वेरी मच नोन टू अस. मंगोलिया का जो इलाका है, यहां से ये स्प्रेड कर गए और ये पूरी दुनिया में फैल गए. आज आप चले जाएं चाइना, मलेशिया, कोरिया, दोनों साउथ एंड नॉर्थ, जितने भी हैं, सिंगापुर, ठीक है जी, इंडिया के कुछ इलाके, साथ में आसाम का जो इलाका है स्पेसिफिकली, भूटान, ठीक है जी, ये जो सारे इलाके हैं जहां पर जो लोग आबाद हैं, जिनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली मंगोलियन बाय स्टॉक. ये मंगोलियन स्टॉक से हैं. दे कम फ्रॉम द सेम ओरिजिन, दे आर मंगोलियंस. ये सारे मंगोलियंस हैं जिनकी छोटी छोटी सी आंखें जब हम देखते हैं ना, ऑल ऑफ देम आर मंगोलियंस. इंडोनेशियन, ये भी मंगोलियंस हैं. ये सारे मंगोलियन स्टॉक से हैं, ठीक है जी. इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एक ग्रुप है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड. Actually, this one is considered to be aboriginal stock. Aboriginal in a sense that they used to have very mighty in structure. Structurally, they were too huge, mighty, large. इनकी बड़ी बड़ी खोपड़ियां होती थी और साथ ही में they used to look quite abnormal. आप देखते हैं ना, जब एक इंसान कुछ खास हद से ज्यादा उसकी लंबाई होती है कद की, तो वो एबनॉर्मल सा लगना शुरू हो जाता है. तो ये जो स्टॉक है, ये बेसिकली ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन स्टेट. जो ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, ये वहां से फैले थे और ये लोग इंडिया में भी थे, सेंट्रल इंडिया में. साथ ही में दीज पीपल हैड लार्ज हाइट्स, ह्यूज हाइट्स, बहुत ज्यादा लंबे थे और उनके सर भी बहुत ज्यादा लंबे थे, तो जिसकी वजह से इसको aboriginal कहते हैं. Aboriginal means something that does not seem to be original. For example, अगर आप एक let's say एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप एक इंसान को देखें और वो 8 फुट का हो या 10 फुट का हो, तो वो एक ओरिजिनल हमें पिक्चर नहीं देता. वो ऐसा लगता है कि कोई अबनॉर्मल सा बंदा है. वो ना भी हो लेकिन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल हाइट है उसकी रेंज से वो काफी ज्यादा है. इसी लिहाज से इस प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कास्ट को अबोरिजिनल इसलिए कहा जाता था बिकॉज दे यूज्ड टू हैव माइटी फिगर्स, माइटी स्ट्रक्चर्स. आफ्टर दैट ग्रुप टिपिकल ऑफ द अबोरिजिनल ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल इंडिया. साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी ये आबाद थे. All these circumstances lead to very interesting speculations, but a great deal remains to be done. All these circumstances मतलब तमाम तर ये जो evidences हैं, सबूत हैं या जो हालात हैं, leads to multiple speculations. Speculations किसे कहते हैं? Discussions based on hunches, conjectures and guesses. Speculation हम उस चीज को कहते हैं कि जिस पर हम डिस्कशन करें, एक चीज पर, एक मुद्दे पर एक डिबेट करें, लेकिन वो डिबेट उसके प्रूफ के 50-50 चांस होते हैं. मतलब इट हैज अ 50-50 चांस. For example, if you look at this, if I say
that this class may have more than 50 students. Now it is speculation. I do not have the proof. I may be right or wrong. It is something that will be proven subsequently, later on, in the later stages. तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो सारे एविडेंसेस हैं, ये जो सारे सबूत हैं, इनसे हमें किस चीज का अंदाजा होता है? इससे हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि जो हमारे पास अभी तक जो सबूत है या जो हालात हैं, उनसे हम सिर्फ स्पेकुलेशंस ही कर सकते हैं, मतलब कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि ये अल्पाइन था या ये मंगोलियन था, लेकिन अगर हम उनके स्कल्स को देखें, उनके स्ट्रक्चर को देखें, उनके चेहरे की ओवरऑल जो एनाटॉमी है उसको देखें, उससे हमें यह अंदाजा होता है that all these people belong to these different tribes and classifications. उसके बाद sites have in recent years been investigated which may even antedate the Mohenjo-daro remains, as for instance that the Kot Diji near Khairpur. Sites का क्या मतलब है? Sites means places. Now different places have been further investigated. Different places have been thoroughly looked upon, and it has been concluded that there are some very primitive civilizations. Primitive का मतलब है बहुत पुरानी. यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है antedate. Antedate means predate. What do you mean by predate? Predate means something that used to live, something that used to occupy, something that used to exist before a particular civilization. तो यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कोट दिज्जी नियर खैरपुर. ये जो कोट दिज्जी का इलाका है, यहाँ पर एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सकाफत रह चुकी है that predates the Mohenjo-daro culture, the Mohenjo-daro civilization. It means that there were some even more primitive civilization than the Mohenjo-daro civilization. तो जब हमारे पास जो मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन है, उससे भी पुरानी एक सिविलाइजेशन यहाँ पर आबाद थी, सकाफत आबाद थी, कोट दिज्जी एरिया जो है खैरपुर के करीब. At present, a serious difficulty stands in the way of interpretation of all these important discoveries, namely the problem of unlocking the pictographic script found at Mohenjo-daro. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जितनी भी हमारी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी भी साइट्स डिस्कवर हुई हैं, और जिसकी बुनियाद पर हमने मुख्तलिफ किस्म की सिविलाइजेशंस और कौमों को देखा है, या उनकी सकाफत को आइडेंटिफाई करने की या स्टडी करने की हमने कोशिश करी है, तो अगर आप उन सारी चीज़ों को देखें तो उन सारी चीज़ों से हमें एक बात का अंदाज़ा लगता है कि वहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम का सामना है, और वो क्या है? पिक्टोग्राफिक एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे. अगर आप देखें, देखिए हर जगह पर या हर सकाफत को आइडेंटिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है जी. उन तरीकों के जरिए हम मुख्तलिफ सकाफतों का, मुख्तलिफ कल्चर्स का हम अंदाजा लगाते हैं. यहां पर भी हमने लगाया. साथ ही में कुछ हमारे ऑब्स्टिकल्स होती हैं. ऑब्स्टिकल्स कहते हैं रुकावटों को, ओके, हर्डल्स को. ऑब्स्टिकल्स मीन्स हर्डल्स. ऑब्स्टिकल्स मीन्स hurdles. What is a hurdle? Hurdle means रुकावट. रुकावटें हमें मौजूद हैं. यहां पर एक रुकावट है पिक्टोग्राफिक पिक्चर्स का. पिक्टोग्राफिक किसे? पिक्टोग्राफिक means the form of writings that survive in the form of pictures. For example, आपने देखा होगा कि जो प्री-डेट हमारी हिस्ट्रीज हैं, वहां पर लिखाई या तो पत्थरों पे होती थी या पिक्चर्स पे होती थी, या पिक्चर के जरिए हम पता लगाते थे, तस्वीर होती थी, या राइटिंग हम करते थे पहाड़ों के चट्टानों पर या किसी और चट्टान पर, प्लेन एरियाज पर. तो ये जो पिक्टोग्राफिक मटेरियल है, ये जब हम देखते हैं, इसके जरिए हमें पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि
So the main problem right now is found at the area of मोहनजोदड़ो. जो मोहनजोदड़ो का इलाका है वहां पर मुख्तलिफ किस्म की जो स्क्रिप्ट्स हमने देखी हैं. फॉर एग्जाम्पल जो पिक्टोग्राफिक मटेरियल हमारे पास आया है, चट्टानों पर जो लिखाई है, जो स्क्रिप्ट है, उससे पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है उस कल्चर के बारे में, सकाफत के बारे में. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल दैट आवर डिस्कवरीज इन फ्यूचर माइट बी नेगेटेड एंड डिफाइड. इसका मतलब कि जो हमने अभी तक डिस्कवरीज की हैं वो शायद मुस्तकबिल में ना ऐसी ना हो, हमने जो की हो वो गलत हो और बाद में सही डिस्कवरीज हो. ये भी हो सकता है जो कि अभी हमें जो कंफ्यूजन चल रही है शायद वो कंफ्यूजन ही गलत हो. सो स्टिल दिस इज a $1,000,000 question that needs to be answered in the later stages once we get hold of all these different pictographic material. Next is, when this by no means simple puzzle is ultimately resolved, the results may well lead to great changes in historical and archaeological theories. बिल्कुल वही बात, उसी बात को मैं एक्सटेंड करूंगा कि अभी तक जो हमारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि ये जो पिक्टोग्राफिक मटेरियल है या जो और हमें कुछ प्रूफ्स मिलते हैं या डिस्कवरीज मिलती हैं, उसकी बुनियाद पर हमें कंफ्यूजन तो है लेकिन वो अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाती हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं. और वो अगर सॉल्व होती हैं तो मजीद हमारे पास डिस्कवरीज आएंगी, मजीद हमारे पास डिस्कशंस होंगी, मजीद हमारे पास स्पेकुलेशन के लिए जगह बचेगी और उसके बाद हम रिजल्ट तक भी पहुंच सकते हैं. सो ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ऑल दीज डिफरेंट मल्टीपल प्रिज्म्स, दे प्रूव that nothing is absolute right now at the moment. Further discoveries, further investigations, further speculations would be carried out in order to achieve the ultimate optimal result. इसका ये मतलब है सिंपल कि अभी तक जो हमारे पास नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो मुकम्मल नहीं है. इसके बाद अभी भी रूम है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. जी, even more recent and of great interest to Pakistan is the work done at Bambur, a site on one of the silted channels of the Indus, about 40 miles from Karachi and very easy of access to Karachi dwellers. इसका मतलब यह है कि जो अभी रिसेंट एक डिस्कवरी हुई है एक इलाके में, उस जिसका नाम है बंबोर. बंबोर को कहते हैं सिल्टेड एरिया. अब सिल्टेड का क्या मतलब है? सिल्टेड का मतलब है filled with sand, मतलब जहां पे मट्टी ज्यादा पाई जाती हो, filled with sand. So it is a silted area and in the recent times so much work has been done on this area. बाम्बोर का जो इलाका है ये तकरीबन यहां से 40 माइल्स, कराची से 40 मील की दूरी पर है और काफी एक्सेसिबल है कराची के रहने वालों को. ड्वेलर्स किसको कहते हैं? ड्वेलर्स मीन्स रेजिडेंट्स. रेजिडेंट्स कहते हैं रिहायशियों को. तो कराची के जो बाशिंदे हैं, रिहायशी हैं, उनके लिए काफी इजी है, काफी आसान है इस इलाके पर जाना. ये जो बाम्बोर का इलाका है जो कि मट्टी से भरा हुआ है, क्यों? और यहां पर काफी काम हुआ है अभी रिसेंटली, क्योंकि ये इलाका अपने आप में एक अहमियत रखता है. आगे, the particular interest of Bambor lies in the possibility that it is the site of Debul where Muhammad bin Qasim landed. अच्छा, अहमियत क्यों रखता है ये इलाका बाम्बोर? ये जो डिस्कवरीज होती हैं या जो डिस्कवरीज हुई हैं, जिन पे काम हुआ है, यहां से एक अंदाजा लगाया गया है जो कि अपने आप में बड़ा सीरियस है, और वो ये है that this is the same area of Debul
where Muhammad bin Qasim landed. मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया था सिंध पर, तो समझा जाता है कि ये वही इलाका है, ये बाम्बोर में, ये जो बाम्बोर का इलाका है जो कि 40 मील के दूरी पर है कराची से, तो वो इलाका असल में दिबूल है जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने लैंड किया था। इसीलिए भी ये ज्यादा मुफीद समझा जाता है इस पे काम करना आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। जी, द पर्टिकुलर इंटरेस्ट, the question of the actual whereabouts of this place has long afforded material for archaeological disputation, and although Bambor was considered a possibility, serious work was not started there until 1958. इसका मतलब यह है कि जो सही मानों में जो सवालात उठाए गए हैं किन चीजों की बुनियाद पर, whereabouts, जो वेयर अबाउट्स हैं, जिन चीजों से अंदाजा लगाया गया है, वेयर अबाउट्स कहते हैं उन निशानियों को जिसके जरिए आप पता लगाते हैं किसी बंदे का, किसी इलाके का या किसी सिविलाइजेशन का। तो इन वेयर अबाउट्स को देखते हुए अंदाजे लगाए गए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, और उस पर काफी डिस्प्यूटेशन का क्या मतलब है? डिस्प्यूटेशन का मतलब है सीरियस आर्ग्यूमेंट्स, सो सीरियस आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, सीरियस डिबेट, इसको डिबेट भी हम कह सकते हैं, मोर स्पेसिफिकली वी कैन कॉल इट अ डिबेट। तो सीरियस डिस्कशंस या डिबेट्स हुई हैं इस मुद्दे पर कि यहां पर ऑल्दो बाम्बोर वाज कंसिडर्ड अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये समझा जाता था कि जो बाम्बोर है यहां पर जरूर एक खास किस्म की सिविलाइजेशन आबाद थी, एक सकाफत आबाद थी, दैट प्रीडेट्स द मोहनजोदड़ो कल्चर। इसका मतलब कि मोहनजोदड़ो से पहले की भी एक सिविलाइजेशन या सकाफत यहां पर आबाद थी, लेकिन इस चीज पर काम 1958 तक नहीं हुआ था, मतलब 1958 तक इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। उसके बाद the serious debate or disputation had started. The results have so far been well worth the effort, and a mosque has already been uncovered which apparently dates from about 150 years after the commencements of the Muslim era, and this begins to get close to the time of Muhammad bin Qasim himself. बट ओके, अच्छा, यहां पर बड़ी कामयाबी के साथ इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, और उन इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया गया है कि यहां पर एक मॉस्क, एक मस्जिद को अंदाजा लगाया गया कि एक मस्जिद तामीर की गई थी जो कि तकरीबन 150 साल बाद मुसलमानों के रूल के बाद शुरू हुई थी, मतलब यहां पर मुसलमानों का राज था, मुसलमानों ने यहां पर हुक्मरानी की गई थी, और अभी रिसेंटली एक मस्जिद वहां पे अनकवर्ड का मतलब एक मस्जिद वहां पर देखी गई है जो कि तामीर की गई थी 150 साल बाद उस एरा के जब मुसलमानों की हुक्मरानी यहां पर शुरू हुई थी। मुसलमानों की हुक्मरानी के ठीक 150 साल बाद उस मस्जिद की तामीर वाक़ई हुई थी। आफ्टर दैट, but it seems the site may well yield a good deal more than this, and at the present stage it is not possible to say how far the digging may extend. देखिए जी, मुसलमानों का जब यहाँ पे गलबा था जो कि मोहम्मद बिन कासिम के जरिए यहाँ पे शुरू हुआ, उस वक्त के ठीक 150 साल बाद यहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई, लेकिन स्टिल यहां पर जब कहते ना कि इट में यील्ड का क्या मतलब है? यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस का मतलब यह है कि अभी तक स्टिल वी आर डिगिंग फॉर, डिगिंग का मतलब खोदना, ठीक है जी, वी आर स्टिल डिगिंग एंड सम न्यू डिस्कवरीज आर ऑल्सो possible, some new inventions are also possible, some new investigations may also be carried out.
तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम सिर्फ एक मस्जिद को देखकर या अभी तक जो हमारे नताइज आए हैं उसको देखकर हम एक मुकम्मल एक सकाफत का अंदाजा लगाएं। जिस तरह हम मोहनजोदड़ो का एग्जाम्पल देते हैं या हड़प्पा की एग्जाम्पल देते हैं, उसी तरह यहाँ की एग्जाम्पल देना फिल वक्त इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टिल further investigations need to be carried out. Further results may be produced. Further investigations, further consequences are also possible. So still we are in the phase of investigations and we will still carry out further research in order to yield or produce tangible substantial result. मतलब कि सॉलिड नताइज देने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस पर मजीद काम करना है। सिर्फ एक मस्जिद को देखकर या कुछ और जो रिमेन्स हैं उनको देखकर हम किसी सकाफत का अंदाजा फिल वक्त ये जो बाम्बोर का इलाका है यहां पर नहीं लगा सकते। वर्क इज ऑल्सो टू बी डन एट Brahman Abad, about 43 miles northeast of Hyderabad, where Dahir, Muhammad bin Qasim's adversary, made his last stand. राजा दाहिर एक फिगर था, उसका और मोहम्मद बिन कासिम, they were actually adversaries. Adversaries किसे कहते हैं? Adversaries. Adversaries means enemies. अगर आप देखें तो एक और इलाका है जिसका नाम है ब्राह्मण आबाद। अगर आप इस नाम को देखें ना, ब्राह्मण आबाद, ये देखें, ब्राह्मण आबाद, इस आबाद को अगर आप निकाल लें तो हमारे पास बचता क्या है? We are left with this word and this is Brahman. Brahman is actually one of the caste systems of Hindu religion. जो सबसे टॉप पे एक कास्ट होती है ना, वहां पे कास्ट सिस्टम है हिंदुओं में, वो टॉप पे जो कास्ट है दैट इज ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण है दे आर हिंदूज। तो ये जो राजा दाहिर है यहां पर ये सेटल था, यहां पर ये इसकी अपनी बादशाह थी एंड ही वाज द एनिमी ऑफ हूम? मोहम्मद बिन कासिम, द मुस्लिम रूलर। दे वर द एनिमीज। तो माना यह जाता है कि वहां पर जो कि, और ये इलाका कितना दूर है? 43 मील दूर है हैदराबाद से। तो 43 मील दूर हैदराबाद से ये इलाका है और यहां पर कौन था? यहां पर था राजा दाहिर एंड ही वाज एब्सोल्युटली इन कॉन्टेस्ट विद हूम? विद मोहम्मद बिन कासिम। एक मुसलमान और हिंदुओं की वो जो टसल थी वो वहां पर भी आपको जाहिर होती है। यहां पर भी अभी काम करना बाकी है फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो मतलब ये है कि ऐसे इलाके अभी तक हैं, ऐसे जगह अभी तक हैं जहां पर बहुत सारा काम करना बाकी है। The ebb and flow of different influences, religious, intellectual and military, have left their various marks on the antiquities of Pakistan. अगर आप देखें the ebb and flow कहते हैं ना, rise and fall, ऐसे ये इसे कहते हैं ebb and flow, राइज एंड फॉल। मतलब कामयाबी फिर थोड़ी नाकामी, फिर कामयाबी, फिर मतलब कि हम डिस्कवरी करते हैं, एक चीज का अंदाजा लगाते हैं, एक सिविलाइजेशन का अंदाजा लगाते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि जो हमने पता लगाया वो ऐसे नहीं था, वो कुछ और था या हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं क्यों हैं, किस लिहाज से हैं? डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, मतलब डिफरेंट असरात, मुख्तलिफ असरात। उसके अलावा हमारे पास जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, मिलिट्री एस्पेक्ट है, उन तमाम ने अपना एक हिस्सा छोड़ा है ऑन द एंटिक्विटीज ऑफ पाकिस्तान। एंटिक्विटीज कहते हैं एंटीक से निकला है। किस चीज से निकला है? एंटीक से। एंटीक किस चीज को कहते हैं? समथिंग दैट इज यूनिक बट ओल्ड, आउटडेटेड। तो जितने
हमारे पास पुरानी एंटीक्स हैं, पुरानी चीजें हैं, पुरानी गाड़ियां भी हो सकती हैं, मसाजिद भी हो सकते हैं, घर भी हो सकते हैं। उनसे हम क्या पता लगा सकते हैं? उनसे हम ये पता लगा सकते हैं दैट देयर वर वेरियस सिविलाइजेशंस एंड दे हैड डिफरेंट कस्टम्स, एंड इन वन सिविलाइजेशन people from multiple ethnicities would live in one specific area. So all these different factors contribute to the confusion. Why? Because once it begins to yield multiple results, several results, innumerable results, later on further discoveries negate the previous discoveries. मतलब जो नताइज आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे मजीद हमारे पास नताइज आना शुरू होते हैं, तो कभी कभार वो पहली नताइज जो नतीजे जो होते हैं या जो नताइज होते हैं उनको वो अपोज करते हैं. दिस इज द रीजन ऑफ आवर कंफ्यूजन. Of Buddhist memorials, perhaps enough have been said, although it deserves to be added that they are not confined to the northwest but extend to Sindh and at Mirpur Khas, east of Hyderabad. Buddhist seals of the 7th and 8th century AD have been discovered. जो बुद्धिस्ट मेमोरियल्स हैं या इनके स्टैचूज हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको अगर आप देखो तो उससे हमें ये अंदाजा होता है कि ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं थे, बल्कि दे आर एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज एज वेल, स्पेसिफिकली टू सिंध. जो सिंध का इलाका है वहां पर, और वहां पर कौन कौन से इलाके हैं? वहां पर मीरपुर खास का जो इलाका है जो कि हैदराबाद की मशरिक की तरफ है, वहां पर हमें बुद्धिस्ट कल्चर के बहुत सारे निशानात मिलते हैं. मतलब यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर जोरों शोर से था, और यहाँ पर मजीद किस्म के हमें डिस्कवरीज मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि 7th-8th सेंचुरी से लेकर डाउनवर्ड्स देयर यूज्ड टू हैव अ बुद्धिस्ट civilization over there. I hope you must have understood the lecture, and we will discuss and continue our discussion in the next class. Till then, take care. Goodbye.